Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Today, this section is the next part which is related to banking knowledge. This is the pre-exam training material as provided by SBI to candidates, and this is related to banking knowledge section. See, this further I again say, do not get carried away that these are the questions which will be asked, but you may have a look, have a view how, what type of questions will be asked during the exam. Hope the screen is visible to you, and I will be discussing the same. Which of the following, the question is, which of the following is not a social security scheme? Social security means like which gives you some assistance in the form of either a financial or insurance or others. Okay. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यस, इसी से सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सी, स्मॉल सेविंग स्कीम like Sukanya Samriddhi, senior citizen, and social security. Both are different. Do not get confused. Okay. Yes, it is a social. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. Yes, both are the same thing. Atal Pension Yojana. Yes, it is a social security. We get the pension. NPS is also, the government is involved in this scheme. Government has launched this scheme. Krisak Utthan Yojana is something else which is not related to social security scheme. CRELIC. CRELIC is a portal which is maintained by RBI. CRELIC के बारे में बता दें, CRILIC, इसको अपने पुराने गवर्नर जो थे वो रघुराम राजन, ये उनका कॉन्सेप्ट था. जब भी वो सितंबर में गवर्नर बन रहे थे तो उस टाइम उन्होंने अपने ड्राफ्ट स्पीच में ये बोला था कि हम एक रिलीफ का मैकेनिज्म लाएंगे जिसमें 5 करोड़ एंड एबो, देखो उनको ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम से 10 करोड़ एंड 5 करोड़ एंड एबो के रिपोजिटरी तैयार करेंगे. रिपोजिटरी क्या है, उसमें बड़े बार की सब इंफॉर्मेशन रहेगी, सो दैट एनपीए को एड्रेस किया जा सके और एनपीए को कम किया जा सके. ओके. Third question is, in case of a cash credit account, if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or DP, whichever is lower for a period of more than 30 days and up to 60 days, then account will go C. 0 से, अच्छा देखो 0 से 30 डेज, ओके, 31 to 60 days, 61 to 90 days. SMA 0, SMA 1, SMA 2. SMA 3 जैसा कुछ नहीं होता है. ओके. तो अभी क्या बोल रहा है, मोर देन 30 डेज एंड अप टू 60 डेज. तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया SMA 1 कैटेगरी में, SMA 1. अच्छा, दूसरा, कैश क्रेडिट के केस में SMA 0 का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कैश क्रेडिट उस मंथ में तो होगा ही नहीं.
क्योंकि कैश क्रेडिट में क्या है, वो पूरे मंथ में रोटेट करता रहता है ना। ठीक है, चलो। क्योंकि 0 to 30 डेज में उसका ड्यू जैसा कुछ नहीं होता। अभी इस मंथ में वो कुछ नहीं जमा करे, तो नेक्स्ट मंथ में उसका हो जाएगा 30 के बाद का ड्यू आएगा। 0 से 30 डेज में उसका क्यों ड्यू नहीं रहता? तो एक ये क्वेश्चन भी जान लो कि सब में जीरो जैसा कॉन्सेप्ट तो उस पे लगना नहीं है। Now the fourth question is, in a cash credit account, the account should be classified as SMA2। देखो फिर से लिखा, SMA2 कब हो जाएगा? अभी SMA के आगे जाएगा जब ये 2 हो जाएगा। 61 से ज्यादा मतलब मोर देन 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा मोर देन 60, एंड अप टू 90 डेज, ये हो जाएगा SMA2। ओके, एसएमए का है, एसएमए का कॉन्सेप्ट देख लो, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये आरबीआई ने लाया था, लेकिन आरबीआई ने भी कॉपी किया है। ये आरबीआई का कोई ऐसा नहीं कि आरबीआई ने बहुत अपना बुद्धि लगाया और बहुत इसने इनोवेटिव स्टेप लिया। यूरोप यूएसए तरफ क्या होता था, स्पेशल मेंशन असेट्स बोलते थे उसको, कि मतलब ऐसे असेट्स जो एनपीए हो सकते हैं, अभी एनपीए नहीं हुए हैं। देखो, एसएमए इज नॉट एनपीए, एसएमए इज द स्टैंडर्ड अकाउंट। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आपके रिटर्न में भी पूछा जा सकता है। एसएमए इज द स्टैंडर्ड अकाउंट। ओके, एसएमए इज स्टैंडर्ड अकाउंट, अपने दिमाग को बना लीजिए। बट दिस अकाउंट इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस, मीन्स दिस अकाउंट, द अकाउंट विच इज running in SMA may turn into NPA after some time or immediately, just very next day if 90 days is approached, then this is called the SMA account. If 0 to 30 days the overdue is there, then this will be the SMA 0 account. Now after 30 days, the 31 day will start, the next day, ठीक, and then now 61 to 90 days. Why only these things? We have concept of 90 days for NPA. We will divide by 3. Then we will get 30. Means 30 days, then next 30 days, then next 30 days, 90 days. See, now 0 to 30, after 30, 31 to 60, after 60, 61 to 90. Here SMA 0, here SMA 1, here SMA 2. There is no SMA 3. SMA 3 means NPA, 90 days reached. Okay, we will go on the next question. In a term loan account, the principal is overdue for 30 days. अभी हमने पढ़ा 0 से 30 डेज, तो SMA 0 होगा, SMA 0 अकाउंट। In case of term loan account, if the principal or interest is overdue for 60 days, okay, if overdue for 60 days means it has been more than 30 days, but 60 days means it is SMA 1. Filing of following security charge in the CERSAI portal is not mandatory. Okay, see, हाइपोथे जहां पे आप सरफेसी लगाओगे वहां पर आपको सेरसाई करना जरूरी है। ओके, मशीनरी हाइपोथिकेशन में लगा सकते हैं यस, हाइपोथिकेशन स्टॉक में लगा सकते हैं यस, इक्विटेबल मोर्टगेज में सरफासी लगा सकते हैं यस, सिंपल मोर्टगेज में भी लगा सकते हैं यस। ठीक है, मीन्स मोर्टगेज हो गया तो आप लगा ही सकते हो। प्लेज में सरफासी नहीं लगता, लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास ही है सब कुछ। भाई सरफासी रिकवरी के लिए ही होता है ना, बंदे ने आपके पास सामान ही रख दिया, आप तो उसके ऑलरेडी ऑनर हो गए हो, आपके कस्टडी में है वो, आप जब चाहे उसे सेल कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री इज ए पोर्टल
विच इज मेंटेन्ड बाय, यस, आरबीआई। क्रिलिक पोर्टल भी आरबीआई है और सेंट्रल फंड रजिस्ट्री भी आरबीआई ही मेंटेन करता है। With respect to international trade, letter of credit used in various occasions. Letter of credit are governed by, देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट का हमने पीडीएफ भी दिया हुआ है, ओके, यूसीपीटीसी, ओके, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अभी इसका 600 चल रहा है। 600 मतलब वर्जन का नाम है, ऐसा नहीं है कि इसके 600 एडिशंस नहीं आए हैं। ये मत समझ लेना कि यूसीपीडीसी 600 में, ये 600 का मतलब क्या है, ये 600 का मतलब क्या है कि जब, देखो, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जब कुछ करता है, मान लो आप अपने ऑफिस में लेटर भेजते हो, तो कुछ यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखते हो, मान लो इस लेटर का नंबर 23 था, आगे लिखा आपने कि भाई ये एचआर को गया था लेकिन लेटर नंबर 24 हो गया। लास्ट में आपने कोई लोन का प्रपोजल भेजा, उसके कवरिंग का सीरियल नंबर डाला एडीवी, और यहाँ पर डाल दिया कि ये 30 नंबर है। ऐसे ही यूज इंटरनेशनल चैम्बर बहुत सारी चीजें इशू करता है, तो जो उसका सीरीज में नंबर आया वो आया है 600, तो इसको बोलते हैं यूसीपी 600। ऐसा नहीं है कि इसका 600 एडिशंस आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इररिवोकेबल। देखो, समझ लो, आज नई गाइडलाइन के हिसाब से जो भी एलसी इशू होंगे वो सब इररिवोकेबल ही इशू होंगे। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने एक एलसी, इसने मुझसे एक बैंक से इशू कराया और मैंने इस बेनिफिशियरी को एलसी दे दिया बाद में, अगर ये रिवोकेबल होता तो इसको रिव्यू कर लेता, मतलब भाई मैं इस पे पेमेंट नहीं कर रहा। बट if irrevocable and LC has been advised and sent to beneficiary, okay, then the payment is mandatory, अब कुछ नहीं हो सकता, okay। तो कह रहा है under irrevocable letter of credit changes or cancellation allowed, okay, allowed, कहा गया, allowed by issuing bank with the approval of the beneficiary, ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो करेक्ट ही है। जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट में वैसे भी इशू होता है तो दोनों पार्टी के एग्रीमेंट के बिना आप वो नहीं कर सकते हो, स्पेशली इररिवोकेबल है तो। इररिवोकेबल का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपने मन से चेंज कर सकता है, नॉट ओनली द डिनाइंग द पेमेंट फॉर सम रीजन, ही मे चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एलसी विच इज आल्सो दिस इज आल्सो हैज बीन बाइंड इन दिस केस। all the letter of credit under any current UCP are current are under all letter of credit are under by the current, yes, ये कह रहा है कि जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होगा वो सब यूसीपीडीसी से गवर्न होते हैं, यस, जो भी एज ऑफ नाउ, सी दिस इज द प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई आल्सो। What are the three pillars of Basel? Minimum capital requirement, yes. Supervisory review process, yes. See, सुपरवाइजरी रिव्यू कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस था, तो कैपिटल और प्रोसेस को इसने एक ही बना दिया है, जबकि गाइडलाइन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तो उसको उससे रिलेट किया हुआ है। मार्केट डिसिप्लिन, यस। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये पहले से ही बोल दिया गया है कि आप सभी डिस्क्लोजर्स करेंगे, नेसेसरी डिस्क्लोजर्स। आप देखोगे कि सेबी और आरबीआई, इनके पास
बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, तो सेबी और अपने कैपिटल और इन सब की जो एडिक्वेसी है उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को करते हैं। दैट इज ए पार्ट ऑफ मार्केट डिसिप्लिन। यस, this is correct, this is also correct and this is also correct, hence all are correct, a b c are correct। इसका मतलब बेसल नाम से भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बेसल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, मींस not only the basel is related to capital adequacy, then they may be asked whether what are the capital adequacy of Indian banks as on this, as per report issued by this, means RBI। तो ये भी देखना है। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनपीए? ओके, एनपीए मीन्स, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और both more than 90 days. On 90 days, it is not NPA. On 91th day, it will be close. Then how you will differentiate 19th and 91st day? As on EOD of 19th day, it will be marked as NPA. Means just when EOD becomes, there comes BOD, begin of the day of the next day. Okay. सपोज आपकी ब्रांच 5 बजे बंद हो गई, 19th डे था, अब बंदा पैसा नहीं जमा कर पाया, क्या होगा? उसने ट्रांसफर कर दिया अपने अकाउंट में। यस, नाउ bill remains overdue. Yes, bill remains overdue for 90 days, then it will also be NPA. The installment or principal thereon remains overdue for 2 crop season, for short duration crop, yes, and 1 crop season for long duration crop। लॉन्ग ड्यूरेशन दिया नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन दिया है। देन ऑल आर करेक्ट, दिस इज द ऑप्शन ई। अच्छा, सी हियर 5 options are showing, means if you guess, there are 20% chances that this will be the correct if you are guessing roughly। in addition to आधार नंबर AEPS, आधार नंबर के अलावा देखो बीसी जो लिए रहते हैं, आधार नंबर तो यूज होता ही है उसमें, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आधार से लिंक ही होता है। एईपीएस का मतलब ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें आधार नंबर तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, दूसरा और क्या लगता है, आप इसमें अपना अंगूठा लगाते हो। अंगूठा क्या होता है? आपके बॉडी का पार्ट है, वो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मीन्स कोई भी, आप यू गिव थंब इम्प्रेशन, देन एईपीएस। ओके, इन द सिविल रिपोर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ओके, इन द इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन डीपीडी स्टैंड्स फॉर, देखो जब आप सिविल रिपोर्ट निकालते हो तो पूरा लोन का अमाउंट आता है, आउटस्टैंडिंग कितना है अभी, कितना आपका ओवर ड्यू है, और पास्ट ड्यू, नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू, डीपीडी, नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू। मतलब क्या कोई ऐसा अकाउंट है जो एनपीए हो गया है, पास्ट ड्यू हो गया है, ठीक है, मीन्स this will be the days past due। DPD stands CIBIL score। What can be the maximum CIBIL score? 900। मैक्सिमम सिविल स्कोर 900 हो सकता है। Which of the following types of accounts facilitate recurring credits and debits in the account? Very, see, डिमांड लोन नहीं। डिमांड लोन मीन्स ऐसा लोन दिया गया है जिसको वो मांग सकता है। डिमांड लोन एक तरह से आप कंज्यूमर लोन ही मांग सकते हो। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, टर्म लोन तो कभी भी उसमें से डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक ही बार में टर्म लोन में डेबिट होता है और उसके बाद बस उसमें केवल क्रेडिट ही होता है टिल लोन क्लोजर, तो ये भी नहीं है। ओवरड्राफ्ट, यस, ओवरड्राफ्ट इज ऑलवेज लाइक कैश क्रेडिट, मतलब
आपके करंट अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैंने आपको 5 लाख का ओडी सैंक्शन दिया, आपने डेबिट कर दिया, फिर आपने 2 दिन बाद क्रेडिट कर दिया। एक दिन फिर आपने ऐसे ओडी लिया 5 लाख का, फिर क्रेडिट कर दिया, या 2 लाख का लिया, तो ओडी ओवरड्राफ्ट अगर है फैसिलिटी तो तीन। टर्म लोन ये भी गलत है, क्योंकि टर्म लोन में क्या होता है, डेबिट एक ही बार होता है। देखो ये ऑपरेशनल चीजें हैं। अब आप बोलोगे कि कोई टीचर आपको ये पढ़ाए, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके लिए कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि भाई लोन, टर्म लोन क्या होता है, कंज्यूमर लोन क्या होता है, इसका रीपेमेंट कैसे होता है, क्या कंज्यूमर लोन में पैसा जमा करके फिर से निकाल सकते हैं, नहीं। हाउसिंग लोन में आपने पैसा जमा किया, क्या फिर से वो निकाल सकते हो, नहीं। जो पैसा एक बार आपने लोन में जमा कर दिया, वो जमा कर दिया, वो काम खत्म है। मीन्स एक बार डेबिट, बार बार क्रेडिट। ओके। बट ओवरड्राफ्ट में क्या है, ओवरड्राफ्ट आप देते हो, फिर बंदा भर देता है, फिर देते हो, फिर भर देता है, लाइक कैश क्रेडिट। उसने पैसा भरा, फिर निकाल लिया, फिर पैसा जमा किया, फिर निकाल लिया। ओके। नेक्स्ट, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? ठीक है। सब स्टैंडर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कि एनपीए। जब कोई अकाउंट एनपीए होता है, तो एनपीए होने के 1 ईयर तक उसमें ऐसा लगता है कि शायद रिकवरी हो जाए, 1 साल तक। ओके। मीन्स एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ, मतलब 12 मंथ से कम तक में जब तक एनपीए रहता है। जैसे मान लीजिए आज अगर ये 1/1/2025 को एनपीए हुआ, ठीक है, तो हम 1/1/2026 तक ये मानते हैं कि ये क्या है, सब स्टैंडर्ड है। मतलब एनपीए है, लेकिन अभी रिकवरी हो सकती है। लेकिन जब ये 1 ईयर के बाद हो जाता है, तो हम बोलते हैं अब डाउट है कि इसमें रिकवरी होगी, देन ये डाउटफुल में चला जाता है। ओके। तो क्या बोल रहा है, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड मीन्स एनपीए लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ। तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। व्हाट इज डाउटफुल असेट? अभी हमने ऊपर देखा कि भाई डाउटफुल असेट वो होगा जो 1 ईयर क्रॉस कर जाएगा। मीन्स एनपीए का, एनपीए होने का 1 ईयर का, अगर ये एनपीए 1/1/2025 को हुआ है, तो 1/1/2026 को वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल वन। तो डाउटफुल में कैटेगरी क्या होती है, DA1 DA2, इस तरह की कैटेगरी होती हैं। और उसके बाद लास्ट का जो कैटेगराइजेशन है, लॉस असेट। लॉस का कोई कैटेगराइजेशन तब होता है जब उस अकाउंट में, ठीक है, मान लो 100 रुपए का लोन है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी 10% से लेस है, ठीक है, उतना भी नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, तो उसको बोल देंगे कि भाई, ऑडिटर बोलेगा या बैंक बोलेगा इसको लॉस में कैटेगराइज करो, जो भी प्रोविजन है उसको राइट ऑफ करके बुक से हटा दो इसे। ओके। चलो, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स आर, देखो बैंक में जो भी डिपॉजिट होती है वो डिमांड डिपॉजिट ही है। कैसे है? क्या कोई बैंक आपको मना कर सकता है क्या? नहीं। पेनाल्टी लगाएगा? यस, लगा ले। भाई ज्यादा अमाउंट है अगर, तो प्री मैच्योर क्लोजर के अलावा भी कंडीशन रख सकता है, टाइम का कंडीशन रख सकता है, दैट इज अनदर थिंग, बट बैंक कैन नॉट डिनाई। ओके। तो दीज आर रिफंडेबल और पेएबल ऑन डिमांड। ओके। जनरली रिफंडेबल इसलिए बोल रहा है कि भाई टाइम से पहले प्री मैच्योर आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें कुछ लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। लोन्स टू इंडिविजुअल, देखो प्रियोरिटी सेक्टर का जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से 25 लाख से, मैंने पहले भी बोला है, इस बार प्रियोरिटी सेक्टर आपको पढ़ के जाना है, बिकॉज रिवीजन हुआ है प्रियोरिटी सेक्टर में। वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रियोरिटी सेक्टर के जो एमसीक्यू की पीडीएफ दी हुई है और गाइडलाइंस की कंपाइलेशन की पीडीएफ है, आप अच्छे से उसे पढ़ के जाएं।
21, the portion of the projected cost contributed by the promoter of a business. Okay, मीन्स जो कॉस्ट है, देखो आप यहाँ पर एक कंपनी लगा रहे हो 60 लाख की, ये हो गया आपका प्रोजेक्टेड कॉस्ट, आप इसको लोन दे रहे हो। बारोवर ने बोला कि भाई मेरे पास 25 लाख रुपीज हैं। ओके, ठीक है, आप बोले कि ठीक है, मैं आपको 35 लाख रुपीज लोन दे रहा हूं। ये हो गया बैंक का पैसा, ये हो गया प्रमोटर का पैसा, इसको बोलते हैं मार्जिन। जनरली क्या होता है, मार्जिन बैंक डिसाइड करते हैं कि मिनिमम इतना मार्जिन लेता है, मैक्सिमम मार्जिन कितना होता है, कुछ भी दे दो वो सब मार्जिन ही है। मिनिमम मार्जिन वो डिसाइड करते हैं हमेशा। मान लीजिए मार्जिन है 10%, तो बारोवर को इसमें 6 लाख लगाना पड़ेगा अगर 60 लाख का प्रोजेक्ट है तो, और 54 लाख बैंक देगी, तो ये 6 लाख जो है वो मार्जिन बोला जाएगा। ओके, और ये लोन अमाउंट बोला जाएगा। ठीक है, द मार्जिन इज आंसर। वेज एंड मेंस एडवांसेस इज मैकेनिज्म टू फंड। WMA, RBI देता है भाई, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को भी। ठीक है, अच्छा इसमें ये बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, चलो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो किसी को भी दे सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में वो दे सकता है। हर एक स्टेट का अपना कोटा होता है, अगर आप उसमें ज्यादा ओवरड्रा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, बट आप जान लो। 23, 24, द आइडिया ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज वाज फर्स्ट। देखो मैंने 6 कमेटी का नाम दिया हुआ है आपको, बस वही उतना पढ़ना है। और ये कमेटी के लिए आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ये कमेटी के लिए अगर आपको याद है, इफ यू आर हैविंग दिस थिंग इन माइंड यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट हैविंग इन द माइंड then you cannot answer the question. Okay, see, consumer protection act 1986 does not cover। देखो कंज्यूमर को कहीं दिक्कत होगी, ओके, तब वो केस करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। ओपन अकाउंट ये सर्विसेज है लेना, ठीक है, वेरी करेक्ट, इसमें कंज्यूमर समझ में आएगा तो लेगा, नहीं समझ में आएगा, आप नहीं दे रहे हो, वो इलिजिबल है तो ही कैन फाइल अ केस। Failure to issue draft, if you are eligible, KYC is complied as per policy, you can do. Sanction of loans, okay. See, you cannot go sanction of loan not only to Copra and also to the banking ombudsman. You cannot go to banking ombudsman for sanction of loans. Okay. कोई बैंक हमें, this is the policy and judgment of officer and bank representing the bank to provide you loan or not। EFC account can be used in form of, देखो ये केवल करंट अकाउंट ही होता है EFC, और एक डायमंड डॉलर अकाउंट, ये करंट अकाउंट है, बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी में अकाउंट है। हालांकि EFC के अकाउंट नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट को क्रिस्टलाइज कर दिए जाते हैं। ओके, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, not to control the exchange and actually to save you from the fluctuations of the currency। difference between buying rate and selling rate, ठीक है, देखो बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं इसको। बिड मतलब बोली लगाना, बोली कौन लगाता है,
जो बाई करता है ना, जो खरीदेगा वो बाई करेगा। तो अगर आपको एग्जाम में नहीं पता है तो आप ये समझ सकते हो, बिड मतलब बोली लगाना, तो बाई ये बिड हो गया। ठीक है। खरीदने वाला पूछेगा भाई कितने में दोगे। ठीक है। ओके। सेलिंग, बिड आस्क, स्प्रेड। देखो फॉरेन एक्सचेंज से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो जीबीपी और आईएनआर का मार्केट रेट कन्वर्जन इस समय पूछ लिया, मतलब क्या रेट चल रहा है, एक जीबीपी में कितने आईएनआर है। बाकी फॉरेन एक्सचेंज का जो पीडीएफ है उससे आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं उसमें, उसके सामने क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल भी है। अगर आप अपना और नॉलेज इनरिचमेंट करना चाहते हो तो यू में गो थ्रू। Next is that domestic scheduled commercial bank, the target for micro enterprises. This is the under the PSL guidelines new, that is the 7.5%. Foreign banks with less than 20 branches, okay, जो लेस देन 20 ब्रांचेस है उनके लिए अलग से क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। ओके। उनको 40% का क्लासिफिकेशन है, बट अलग से ऐसा टारगेट नहीं दिया गया है। तो देन दिस इज द नॉट अप्लीकेबल फॉर द फॉरेन बैंक्स विद लेस देन, बट इफ द फॉरेन बैंक हैविंग मोर देन 20 branches then it will be applicable. As per MSME Development Act, see, this is the already discussed composite criteria. This is the called the composite criteria. This has been revised. Details are already shared. वेरी सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विल बी देयर, आई कैन से, बट सी, what is this? As a micro enterprises, the micro enterprises will be 2.5 in plant and machinery, and 4 times of this will be the turnover, means it is the 10 crore. If any of the criteria is breached, the this enterprise will go in the next category. However, it will be continuing the same category for that financial year it is operating. ऐसे ही मीडियम इंटरप्राइजेस का क्या क्राइटेरिया है? दिस इज द सिंपल डिफिनेशन। अच्छा, डायमंड डॉलर, अगर ये डायमंड से ही आपको पता चलना चाहिए, और डॉलर इज द फॉरेन करेंसी रिप्रेजेंट्स। ओके। तो जो भी रफ एंड कट एंड पॉलिश डायमंड्स, मतलब जि चाहे जिस तरह के, चाहे रफ डायमंड्स, कट डायमंड्स और पॉलिश डायमंड्स में जो ट्रेड करते हैं वो डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं। बट क्वेश्चन विल बी, कितने, एक बंदा कितने अकाउंट डायमंड डॉलर खोल सकता है? ये 5 खोल सकता है। और ही कैन आल्सो, ही कैन ओपन दिस अकाउंट्स ओनली इफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, मीन्स एक्सपोर्टर्स विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड। ओके। आप आज ही एक्सपोर्टर बने हो और आज ही आपको डायमंड डॉलर तो नहीं, बैंक अलाउ नहीं करती है। ओके। mortgage is defined, mortgage is the transfer of property, it will be defined in transfer of property act. ओके। बायर सेलर एक्ट जैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ट्रांसफर्स एक्ट भी कुछ ऐसा नहीं है, और प्रॉपर्टी एक्ट भी कुछ नहीं। तो इसमें तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप कैसे लगा सकते हो। चूज द वन विद रिगार्ड्स टू हाइपोथिकेशन। ठीक है। सी, हाइपोथिकेशन इज द ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी का हाइपोथिकेशन करते हो। यस, you can do hypothecation of plant and machinery, but choose one with odd regards to hypothecation. Means movable goods, yes, you may hypothecate. Yes, stocks. See, in this case, all these are movable. Generally, plant and machinery are also can be movable and hypothecated. For the gold,
you may pledge. Then this will be the odd option. Means हाइपोथिकेशन यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ गोल्ड को हाइपोथिकेट नहीं कर सकते। ओके, गोल्ड को हाइपोथिकेट कर सकते हो? नहीं, मैं कर सकता हूँ। यस, मैंने एक मशीन बनवाई गोल्ड की, हो गया हाइपोथिकेट? नहीं। वाई? Doesn't talk about material. It is the machinery which is being hypothecated. Okay, maybe made of gold. Even the car भी तो गोल्ड की हो सकती है, तो इस तरह से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउसिंग लोन्स फॉर बैंक्स आज एम्प्लॉय विज बी नो भाई, नो। बैंक एम्प्लॉय को कोई भी लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। ओके, स्कीमेटिक लोन कोई भी। banks having any shortfall in priority sector lending, okay, अगर priority sector lending में आपको शॉर्टफॉल है, ओके, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड को पैसा जाएगा। और अगर एमएसएमई या उस पे डिफॉल्ट है तो आपको सीडबी के पास बहुत कम इंटरेस्ट में आपको पैसा रखना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड? देखो, ये मैंने डिस्कशन में भी बताया था, किसान क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट जैसा कुछ नहीं है। ओके, 3 लाख तक की लिमिट में इंटरेस्ट सबवेंशन है, उससे ऊपर दोगे तो इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 लाख तक कोई हाइपोथिकेशन या मोर्टगेज वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं कराना है। हालांकि क्रॉप का हाइपोथिकेशन रहता है, लैंड पे अपना रिकॉर्ड पे बैंक का नाम नहीं चढ़ना है। बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी के पास 500 एकड़ है तो 500 एकड़ का लेगा। ओके, कारपोरेट फार्मर्स। हु विल फिक्स द स्केल ऑफ फाइनेंस? ये हमने पहले ही बताया हुआ है, और पूरे ब्लॉक लेवल और इन सब की मीटिंग की फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी वो डिसाइड करती है स्केल ऑफ फाइनेंस एग्रीकल्चर क्रॉप लोन, और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो है ये मीटिंग में ये सब एजेंडे को रखती है कि किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है। तो हमें कैसे लगेगा भाई, स्केल ऑफ फाइनेंस टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है, तो इसमें टेक्निकल कमेटी केवल एक जगह है, बाकी जगह कहीं टेक्निकल कमेटी नहीं है, तो केवल यही आंसर होगा। ये इस तरह से भी आप इस आंसर को कर सकते थे। दूसरा, मिनिमम मार्जिन प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्रेडिट कार्ड इज, कहीं भी क्रेडिट किसान है केसीसी में कोई मार्जिन नहीं है भाई। कहीं किसान को बोलते हो क्या कि 3 लाख का केसीसी दे रहे हैं, 10% जमा करो? आप नहीं करते ना, जितना लिमिट आपने कैलकुलेट किया उतना लोन दे दिया। ठीक है, कितना है मार्जिन? 0%। The risk that arises due to errors, interpolation damages which are caused by people or any technical error or this operational risk. ओके, देखो क्रेडिट रिस्क क्या होता है? Deterioration in credit quality of the instrument or a loan or any other facility is associated with any type of investment is called the credit risk. The market risk is due to the fluctuation in the market. Okay, then this is the also not a liquidity risk, the unavailability of liquid funds means cash crunch, then it is also not the part of error. Okay, operation. People risk is not any specific risk, this is the part of related with the operations of the people, that is part of operational risk, this is not especially any risk. Okay, why credit market and operational, this type of risk is comes under, has already been discussed in the Basel. So I believe that you find that the questions are very easy and similar questions will be asked. Therefore, and if you want some more discussions, you do comment and advise the needful. I will be sharing on this. For the till then, best of luck for your exam. Do well, keep doing good. Thank you.